Hello and welcome to Exam Shastra. Today we'll discuss about the current affairs of 31st of October. आप सभी को मालूम है मैं पिछले 15-20 दिनों से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इसीलिए हम लोगों ने मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन ला नहीं पाया था कोई भी करंट अफेयर्स। हालांकि इंस्टाग्राम में हम लोग अपलोड कर रहे हैं डेली, तो उसको भी आप लोग चेक कीजिए। एनीवेज সকলোকে স্বাগতম বহু দিনৰ পাছত। एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी যে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আনিব পৰা নাছিলোঁ। এনিৱে চ' আজি APSC এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু যিখিনি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এডিআৰই বা সাব ইন্সপেক্টৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি ডিছকাছ কৰিম। চ' দিছ ইজ দ্য লিষ্ট অফ দ্য টপিক ফৰ টুডে। APSC ঠিক আছে, ফৰ APSC প্ৰিলিम्स एंड फॉर एडीआरई एंड सब इंस्पेक्टर। सो आप সকলে গম পাইছে, आप सभी को मालूम है कि हम लोगों ने हाल ही में 2 क्लास कोर्सेज लॉन्च किया है। फिलहाल के लिए एक प्रारंभ बैच और दूसरा है प्रथमा बैच। ठीक है, तो आपका ये जो होगा अभी डेडलाइन जो टाइमलाइन है वो चेंज हो गया है। प्रथमा जो बैच है वो 10th of नवंबर से ये चालू होगा एंड कल से ये आपका 1st of नवंबर से स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन आया है फॉर एडीआरई एंड सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन एंड फॉर्म फिलअप अभी फ़िलहाल चल रहा है। सो इसके लिए आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन चालू नहीं किया है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द लिस्ट लाइक दिस इज़ द फैकल्टी टीम फॉर APSC। आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं। ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट एंड SSC का टीम है। ठीक है, तो बेसिकली जो APSC पॉइंट ऑफ व्यू से पहला टॉपिक है, इट इज़ अबाउट राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 3। आपका एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये न्यूज़ आया था डाउन टू अर्थ में। ओनली द गिर इंडिजिनस काउ ब्रीड इज बीइंग प्रमोटेड अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। কোৱা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছনৰ আণ্ডাৰত যি গিৰ গাই আছে সেই গিৰ গায়ৰ ব্ৰীডক কি কৰা গৈছে প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত স্টেপ লোৱা গৈছে। বাট আমি এইটোও চাম যে গিৰ গাই কি হয়, ঠিক আছে, কি প্ৰব্লেম আছে গোটেইখিনি আমি চাম। সো হোৱাট ইজ দ্য নিউজ? একচুৱেলি উইথ অলমোষ্ট এ ডিকেড ইনটু ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছন, ইট ইজ ফাউণ্ড ডেট ইনষ্টেড অফ ইম্প্ৰুভিং দ্য কোৱালিটি অফ ইণ্ডিজিনাছ ব্ৰীড as envisioned under the scheme, it has ended up promoting only one indigenous variety, the gir cow, across the country। কি কোৱা গৈছে অলমোষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছনৰ 10 বছৰে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'ব হৈছে আৰু এইটো দেখা পোৱা গৈছে যে লাইক মানে ইট ইজ ইনষ্টেড অফ ইম্প্ৰুভিং দ্য কোৱালিটি অফ অল দ্য ইণ্ডিজিনাছ ব্ৰীড। যিহেতু এতিয়া বহুকেইটা আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ ব্ৰীড আছে, গিৰ আছে, তেনেকৈ বহুকেইটা ব্ৰীড আছে। চ' বাকীখিনিৰ ওপৰত নহয়, কেৱল আৰু কেৱল এতিয়াৰ কাৰণে লাইক ইনিচিয়েলিটো লোৱা গৈছিলে যে ভেৰাইটিজ অফ লাইক ইণ্ডিজিনাছ ব্ৰীডৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে বেচিকেলি কেটেলৰ কথা কোৱা গৈছে। চ' সেইখিনি ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছিলে, কিন্তু এতিয়া কোনটো ব্ৰীডৰ ওপৰত চবতছে বেছি ফ'কাছ কৰা গৈছে এইটো হৈ গ'ল গিৰ গাই। ঠিক আছে, যিটো গিৰ ক'ত আছে, বেচিকেলি গিৰ গাই ক'ৰ পৰা বিলং কৰে, কোনটো অঞ্চল, গুজৰাটৰ অঞ্চলটোৰ পৰা। ঠিক আছে, চ' এই গিৰ গাই বিষয়ে আমি চাম গোটেইখিনি। প্ৰথমতে চাই লওঁ যে হোৱাট ইজ দ্য লাইক ইছ্যু উইথ ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছন। চি, ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছনৰ কথাও একদম সংক্ষেপে জানি লওঁ, মই লাষ্টতো দি থৈছোঁ। অ'কে, চ' ইণ্ডিয়াছ ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছন ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন 2014। নিউজত আছে, সুধিব পাৰে যে কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা গৈছিলে, যদি লাইক মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ দিয়ে, ঠিক আছে, প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইটো সোধা যাব পাৰে বা ষ্টেটমেণ্ট দিব পাৰে। বেচিকেলি ইট প্ৰাইমেৰিলি ফ'কাছড গিৰ গাই এণ্ড নট মাছ অন আদাৰ ব্ৰীডছ। এতিয়া ঠিক আছে, এতিয়া কিহৰ ওপৰত কৰা গৈছে, ৰিচেণ্টলি কি কৰা গৈছে, গিৰ গাইৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা গৈছে। ঠিক আছে, now these preferences for gir cows stems from their milk production and adaptability to different regions। তো ইয়াৰ কাৰণ এইটোৱে হয়। ঠিক আছে, now the thing is লাইভ ষ্টকৰ ক্ষেত্ৰত বেচিকেলি ইম্পেক্ট কি পৰিছে আমি চাব লাগিব। 2019ৰ যি চেঞ্চাছ আহিছিল, লাইভ ষ্টক চেঞ্চাছ, ইট শ্ব'ড এ 70% increased in pure breed gir cows since 2013। তো এইটো যিটো উদ্দেশ্যে লোৱা গৈছিলে গিৰ গাইক মানে প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে, ফ'কাছ কৰিবৰ কাৰণে, তাত 70% ইনক্ৰিজ দেখা গৈছে। ঠিক আছে, নেক্সট হ'ল ইন কণ্ট্ৰাষ্ট আদাৰ ইণ্ডিজিনাছ ব্ৰীডছ লাইক চাহিৱাল, ঠিক আছে, এণ্ড হাৰিয়ানা হেভ নট এক্সপিৰিয়েঞ্চ চিমিলাৰ গ্ৰোথ। কোৱা গৈছে যে ইয়াৰ তুলনাত বাকী যিখিনি ইণ্ডিজিনাছ ব্ৰীডছ আছে যেনেকৈ চাহিৱাল
ৰিজনত পোৱা যোনটো ব্ৰিড আছে, ঠিক আছে। তো সেই গাই ব্ৰিডটো বা হাৰিয়ানাৰ সেই অঞ্চলৰ যিখিনি ইণ্ডিজিনাছ ব্ৰিড আছে তাত এনেকুৱা গ্ৰোথ আমি দেখা পোৱা নাই। অনলি গিৰ গাইৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায় 70% ইনক্ৰিজ দেখিবলৈ পাইছোঁ। দিছ ট্ৰেণ্ড ৰেইজেছ কনচাৰ্নছ अबाउट द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स इन इंडिया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम की यहाँ से क्या प्रॉब्लम है, देखिए अभी क्या है कि मार्केट के बारे में अगर देखेंगे या फिर प्रमोशन के बारे में अगर देखेंगे तो बेसिकली गिर पे ही ज्यादा फोकस किया जा रहा था, ठीक है। पिछले करीबन आपका 6-7 साल के बाद जो लाइव स्टॉक सेंसस आया था तो उसमें यह भी देखा गया कि 70% इंक्रीज हो चुका था 2019 तक। अभी बात ऐसा है, ये अगर मान लीजिए गिर का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, ठीक है, किसी भी एक आपका ब्रीड के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है, ऐसे क्या होगा, डाइवर्सिटी जो है वो नहीं रहेगा, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी होगा। और मान लीजिए कि एक टाइम के बाद जाके ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं मैं कि गिर गाय ही बाद में जाके मिलने लग गया और मान लीजिए कोई भी एक महामारी जैसा सिचुएशन आ गया जिससे गिर गाय पे असर पड़ेगा, तो क्या हो सकता है, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा लाइक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी होने से बहुत सारे चीजों के लिए, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक लाइक पर्सपेक्टिव से, एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से, हर एक पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हाट आर द इश्यूज विथ इंडिजिनस गिर काउ ब्रीड। तो ये जो इंडिजिनस गिर गाय है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, देखिए इससे रिलेटेड जो मेन प्रॉब्लम है ये कौन सा है, देखिए inconsistent performance of graded Gir cows. Contrary to the growing obsession with Gir cows, research reveals that graded Gir cows do not consistently outperform indigenous breeds in many states. ঠিক আছে, তো যি হিচাপত এক্সপেক্টেশন কৰা গৈছে তেনেকৈ যদি আমি পাৰফৰমেন্সৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, মিল্ক প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, তো আমি তেনেকুৱা লাইক ৰিসাৰ্চাৰ্ছে কৈছে যে হেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েলিটি কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ একো হোৱা নাই। फॉर एग्जाम्पल आप सभी के लिए यहाँ पे लिखा है कि इन हरियाणा देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंक्रीज मिल्क फ्रॉम गिर गाइस, ठीक है। ईस्ट राजस्थान के बारे में अगर बोला जाए, इट हैज रिपोर्टेड लोअर मिल्क प्रोडक्शन इन ग्रेडेड गिर काउस कंपेयर टू इंडिजिनस वेराइटीज। तो इंडिजिनस वेराइटीज से भी आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ग्रेडेड गिर काउस जो है, ठीक है, तो ये जो गिर काउस है वहां से मिल्क प्रोडक्शन कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात क्या है कि वेस्टर्न राजस्थान वाला जो पार्ट है वहां पे ग्रेडेड गिर काउस दे परफॉर्म बेटर ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये जो है आपका ये जो गुजरात वाला जो एरिया है, ठीक है, ऐसे करके राजस्थान वाला एरिया यहाँ पे है। तो बेसिकली गिर वाला जो देखिए ये वेस्टर्न राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न राजस्थान है, तो दोनों के अंदर लाइक डिफरेंसेस है, माइक्रो क्लाइमेटिक डिफरेंसेस है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप सभी को मालूम है बहुत ज्यादा हॉट है, एरिड कंडीशन है। तो ये जो है गुजरात का ये वाला पार्ट, ये भी कच्छ वाला एरिया है, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि गिर बेसिकली इस रीजन से ही बिलोंग करते हैं, तो इसके साथ वेस्टर्न राजस्थान का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि वेस्टर्न राजस्थान में इसका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, इट इज बेटर ड्यू टू इट्स फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। तो यहां तक ये याद रखिए इशू क्या है, मेन इशू क्या है, ठीक है। नाउ लाइक गिर गाइस के, ठीक है, जो आपका गिर काउस के लाइफ स्टॉक नंबर्स पे क्या असर पड़ा है, तो इससे रिलेटेड भी आप लोगों को अगर मेंस पर्सपेक्टिव से लिखना होगा तो वहां पे आप लोग लिख सकते हैं। नाउ व्हाट सॉल्यूशंस कैन बी अडॉप्टेड, देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, देन गिर गाय के रिलेटेड इश्यूज। व्हाट सॉल्यूशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन क्या है, एम्फेसिस ऑन जेनेटिकली सुपेरियर इंडिजिनस काउस। तो हमारे यहाँ पे जो भी इंडिजिनस काउस है, ठीक है, जो जेनेटिकली सुपेरियर है, वहां पे ज्यादा उस पर्टिकुलर हर एक ब्रीड्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। एक्सपर्ट सजेस्ट ए शिफ्ट फ्रॉम द current focus on a few high yielding bovine varieties to identifying and breeding genetically superior cows from among indigenous breeds। तो इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि गिर ही है, साहिवाल है, तो अलग अलग जो भी ब्रीड्स है तो उस पे भी ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, ऐसा मानना है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, जो जेनेटिकली सुपेरियर इंडिजिनस काउस है, ठीक है।
तो जो फोकस है बेसिकली उसको शिफ्ट करना है, यही यहाँ पे बोला गया है। सेकंड जो है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिजिनस बोवाइन वेराइटीज। इंडिया बोasts a diverse cow population, each adapted to specific region। देखिए इंडिया में क्या है कि हर एक रीजन के लिए एक अलग अलग खास, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के लिए अलग, हॉट एंड आपका ड्राई कंडीशन के लिए अलग, ठीक है, माइल्ड एंड ह्यूमिड कंडीशन के लिए अलग अलग वेराइटीज है, ठीक है, आप सभी को मालूम है। तो इंडिया हैज ए डाइवर्स काउ पॉपुलेशन। सो ये जो है आपका कॉन्टिन्यूअस क्रॉस ब्रीडिंग, इट कुड लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ रीजन स्पेसिफिक ट्रेट्स इन ग्रेडेड वेराइटीज। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग किया जा रहा है, ठीक है, गिर के साथ कोई इंडिजिनस वैरायटी कर लिया, ठीक है, साहिवाल के साथ कोई इंडिजिनस वैरायटी के साथ क्रॉस ब्रीड हो गया। तो इससे क्या होता है कि लाइक जो आपका स्पेशियल एक्सटेंशन है इन लाइक रीजन स्पेसिफिक जो ट्रेट है, ठीक है, आपका जो काउ पॉपुलेशन का, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है रीजन स्पेसिफिक ट्रेट्स में, ठीक है। बेसिकली ग्रेडेड वैराइटीज के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तीसरा जो है लेसन्स फ्रॉम द पास्ट एंड फ्यूचर गोल्स। हम सभी को मतलब इंडिया के फार्मर्स को, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या फोकस करना है कि हमारे पास्ट में किए गए गलती फिर से हम लोग ना दोहराए, इसके लिए भी हम लोगों को जागरूक होना है। बेसिकली एक्सपर्ट्स caution against repeating the mistakes of the white revolution। एक्सपर्ट का कहना है कि आप लोगों को थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। जो व्हाइट रिवॉल्यूशन के टाइम पे गलती हम लोगों ने किया था, उस टाइम पे क्या किया गया था ड्यूरिंग दैट टाइम, like various breeds like Jersey, ठीक है, they were imported to India, ठीक है। So exotic imported exotic breeds like Jersey and cross breeding with Indian varieties। জার্সি গরু বাহিৰৰ পৰা আনি ইণ্ডিয়ান ভেৰাইটিজৰ লগত ক্ৰছ ব্ৰীড কৰাই দিছিলে। সো আল্টিমেট কি প্ৰব্লেম হয়, এই প্ৰব্লেমটো হয় এক্সটেনশন অফ ৰিজন স্পেসিফিক ট্ৰেটস। While this increased milk production, it did not necessarily lead to higher income for livestock rearers, as crossbreed cows were more susceptible to disasters and required more care। तो दूसरा কথা আছে, increase suppose কোনোবাই জার্সি গরু পুহিছে, ठीक है, जर्सी गाय अगर किसी के पास है, तो ऐसा नहीं है कि जर्सी गाय का मान लो तुम्हारे पास कोई इंडिजिनस वैरायटी है, वो 5 लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस लाइक देता था डेली, अभी जर्सी आ गया तो 20 लीटर्स दे रहा है, लेकिन यहाँ से तुमको मिल जाता था मान लो कि 250 रुपये पर डे, ठीक है, और तुम्हारा लाइक खिलाने पिलाने का क्या कुछ नहीं, ठीक है, घास तो मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ से तुमको मिल रहा है 20 लीटर, ठीक है, मान लो 1000 रुपीज, लेकिन इनको खिलाने में ही तुम्हारा अगर 800 रुपए जा रहा है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि लीटर बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गया, उसके हिसाब से तुम्हारा क्या बढ़ रहा है, इनकम भी जनरेट हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दे रिक्वायर मोर केयर, ठीक है, तुमको लाइक कंडीशनिंग होम लाइक एक माहौल में रखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा खासा खिलाना पड़ेगा, एंड दे ससेप्टेबल टू डिजीजेस बिकॉज वो लोग जो है लाइक जो डोमिनेंट ट्रेट है वो जर्सी का बाहर से है, मान लो जर्सी गाय है तो बाहर से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हमारे मान लीजिए कि आसाम में लेके आए तो यहाँ पे वो क्लाइमेट अलग हो जाता है, भले ही ब्रीडिंग करके ही कुछ लाया गया है, लेकिन क्लाइमेट अलग हो जाता है, तो उस क्लाइमेट में वो टिक नहीं पाता है। तो ये सब प्रॉब्लम है, ये सिर्फ कैटल के साथ ही नहीं है, ये लाइक आपका अलग अलग पोल्ट्री फार्मिंग हो गया या फिर कोई भी लाइक एनिमल हस्बेंड्री में ये प्रॉब्लम दिखने को मिलता है। सो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जेनेटिकली सुपेरियर इंडिजिनस काउस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है इंडियन बोवाइन वेराइटीज का वहाँ पे दीजिए, मतलब रीजन स्पेसिफिक ट्रेट में ज़्यादा ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? तो ये है एग्जैक्टली कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो बात है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, जो कि फोकस जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और रीजन स्पेसिफिक ट्रेट में फोकस करना पड़ेगा। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ठीक है, ताकि एक्सटेंशन ना हो जाए, ठीक है। एंड जो हमारे जो पास्ट से जो भी पास्ट में हमने गलती किया था तो उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि ये क्रॉस ब्रीड कराने का जो प्रोसेस है उसको खत्म करके नया शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशंस कि कैसे इसको ठीक किया जा सके, व्हाट सॉल्यूशंस कैन बी एडॉप्टेड, ठीक है, टू टैकल दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने फिर से दिया है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन
देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ये इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोवाइन वेराइटीज, ठीक है, और ब्रीड्स। लेकिन काम क्या हो रहा है भाई, गिर पे ज्यादा फोकस किया गया है। ये इसका सबसे बड़ा जो लूप होल है ये है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे मैंने दिया भी था ना कि यहाँ पे देखिए ईस्ट राजस्थान हरियाणा में तो काम नहीं कर रहा है ना, ठीक है। एंड दिस स्कीम इज ऑल्सो कंटिन्यूड अंडर अम्ब्रेला स्कीम राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना। এইটো কি হয়, ৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন বিকাশ যোজনাৰ এটা আমব্ৰেলা স্কিম হয়। ইয়াৰ আন্ডাৰতে আসলতে ৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন বিকাশ যোজনা, ইয়াৰ আন্ডাৰত এই স্কিমটো ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছন এইটো লঞ্চ কৰা গৈছিল, ঠিক আছে। विकास RPVY, ठीक है, from 2021 to 2026 with a budget outlay of 2400 करोड़। नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो एनहेंस प्रोडक्टिविटी ऑफ बोवाइन्स एंड इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। जो बोवाइन्स का प्रोडक्टिविटी है, मिल्क प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाना है, लेकिन इन ए सस्टेनेबल मैनर, ठीक है। उसके साथ साथ टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग, मतलब इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग पे भी उसको अभी प्रमोशन किया जाएगा, ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव था। एंड टू कंजर्व इन ए साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर, टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड टू कंजर्व इन ए साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, अलोंग विद इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बोवाइन्स, ठीक है। तो बेसी যদি সাপোজ 2400 কোটি টাকা খৰচ কৰিছে, তো ডেফিনেটলি গভৰ্ণমেণ্টে এইটো বিচাৰিব যে মানুহে कैटल रियरिंग বা बफेलो रियरिंग কৰক। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक ये जो है इट इज ये इंपॉर्टेंट है, अटल भूजल योजना, ये गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आपका जो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। व्हाई इन द न्यूज रिसेंटली 5th मीटिंग ऑफ नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमिटी ऑफ अटल भूजल योजना, ठीक है, अटल भूजल, ठीक है, अटल भूजल या फिर अटल जल योजना वाज हेल्ड टू रिव्यू द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम। तो ध्यान रखिएगा, आज दो स्कीम के बारे में ही बात किया गया, मिशन और स्कीम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन एंड दूसरा जो है अटल भूजल योजना या फिर अटल जल स्कीम, ठीक है, या फिर मिशन। ओके, सो अटल भूजल योजना क्या है? अटल जल इज अ सेंट्रल और अटल भूजल योजना एक ही बात है, ये जो है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कहीं पे अगर दिख गया आप लोगों को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, या तो 60-40 के रेशियो में ये स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये डिवाइड हो जाता है। और बेसिकली कई सारे स्कीम्स में नॉर्थ ईस्ट के लिए ये रेशियो होता है सेंटर का 90% एंड 10% फॉर द रेस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। ये याद रखिए द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका जो बजट आउटले है इट इज अराउंड 6000 करोड़। ये बहुत ही ज्यादा बजट इसके लिए रखा है फॉर अटल भूजल योजना, ठीक है। ओके, सो ये कौन चला रहा है, कौन सा मिनिस्ट्री चला रहा है, ठीक है। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आप सभी को ये लगा होगा कि आज मैं इतना धीरे से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम कभी कभार प्रॉब्लम दिख जाता है स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं धीरे से पढ़ा रहा हूँ। अगर धीरे से पढ़ा रहा हूँ तो आप जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। द स्कीम इज बीइंग फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ऑन 50:50 बेसिस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा कहां से ला रहा है, वर्ल्ड बैंक से ला रहा है, ठीक है। मान लो 6000 में से 3000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, और जो आपका 3000 करोड़ है वो कौन फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इट एम्स टू इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। কিহৰ কাৰণে আছে, গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিসোৰ্সেছৰ মেনেজমেন্টৰ কাৰণে অটল ভূজল যোজনাটো অনা গৈছে ইন সিলেক্টেড ৱাটাৰ স্ট্ৰেচড এৰিয়াজ ইন আইডেন্টিফাইড ষ্টেটছ। মানে কেইখনমান আইডেন্টিফাই কৰি লৈছে ষ্টেট, তাৰে যিখিনি ৱাটাৰ স্ট্ৰেচ এৰিয়া আছে, ঠিক আছে,
ইণ্ডিয়াৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেট কেইখনৰ ৱাটাৰ ষ্ট্ৰেছ যোনখিনি এৰিয়া আছে তাৰে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছৰ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে বিকজ ৱাটাৰ লেভেলটো ল' আছে সেইকেইখনত ওকে ৱাটাৰ ষ্ট্ৰেছড হয় তাত মানে যথোপযুক্ত তাত পানী নাই সেইকাৰণে এই ষ্টেট কেইখন লোৱা গৈছে सो उनमें से क्या क्या है गुजरात है हरियाणा है ठीक है ऊपर से अगर देखेंगे तो राजस्थान है ठीक है उसके बाद उत्तर प्रदेश है फिर आपका कर्नाटक एंड महाराष्ट्र ऐसे अगर देखेंगे ठीक है तो कैसे याद करना है कैसे याद करेंगे इंडिया का मैप आप लोग याद रख लीजिए ठीक है वो तो आप लोगों को याद है ही तो मान लीजिए क्या क्या है यहाँ पे आपका हरियाणा है ठीक है उसके बाद क्या है राजस्थान है ठीक है हरियाणा राजस्थान हो गया फिर गुजरात है ओके फिर यहाँ पे महाराष्ट्र है फिर यूपी है एंड महाराष्ट्र के नीचे क्या है यहाँ पे कर्नाटका है हरियाणा यूपी राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका तो ऐसे करके याद रख लीजिए ठीक है तो ये करके याद रखिए तो कुल मिला के आपका 6 स्टेट्स के लिए ये लाया गया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का रीजन है ठीक है ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ इन 6 स्टेट्स में नहीं है हर एक स्टेट्स में हर एक स्टेट की अलग अलग सिटीज में ये दिखने को मिलता है बिकॉज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इंडिया इज अ मेजर कंसर्न बिकॉज इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है जो नीचे हमारे पास ग्राउंड वाटर है वहां से पानी हम लोगों को मिलता है सम ऑफ द मेन कॉजेस क्या क्या है पहला तो है ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस जो बेसिकली वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखा जाता है उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन गुवाहाटी का ही केस मान लीजिए उसके बाद में क्या है क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये हो रहा है क्योंकि कैसे हो रहा है मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो रेनफॉल पे ये असर हुआ है रेनफॉल नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर क्या होगा डिप्लीशन होगा या फिर जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे चला जाएगा तो ये 3 मेजर कारण है ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फैक्ट्स मैंने दिया है इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर exceeding the use of United States of America and China combined according to recent UN report मतलब दोनों को मिला के इन दोनों कंट्रीज जितना यूज करते हैं उनसे भी ज्यादा मतलब वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर कौन है इंडिया है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB of India approximately 70% of the total water used in India is from groundwater sources मतलब हम जितने भी तरीके के यूजेस वाटर करते हैं उनमें से जो 70% है वो कहाँ से करते हैं ग्राउंड वाटर से ही किया जाता है बाकी रिवर वाटर ठीक है मान लो कि आपका सी वाटर ठीक है और या फिर अलग अलग सोर्सेस से ये किया जाता है या फिर ये भी हो सकता है कैनल से भी यूज किया जा सकता है तो अलग अलग सोर्सेस से यूज किया जाता है लेकिन 70% ऑफ वाटर टोटल वाटर यूज्ड इन इंडिया आर फ्रॉम कहां से फ्रॉम ग्राउंड वाटर तो कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है ये तो इससे ही पता लग जाता है ठीक है और 25% ऑफ द कंट्रीज टोटल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज अनसस्टेनेबल ये जो 70% जो हम लोग यूज करते हैं ना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट जो करते हैं उनमें से मतलब ये जो उनको अगर 100% बना देते हैं तो 25% टोटल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है इट इज टोटली और हाईली अनसस्टेनेबल मीनिंग दैट इट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड एट द फास्टर रेट then it can be replenish मतलब रिप्लेनिश होने के लिए ग्राउंड वाटर टेबल को जितना टाइम लगेगा उससे कई गुना ठीक है कई कम टाइम में हम लोग ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है तो मानी लो बोले जिमान ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट কৰিব লাগিছিল बोले रिप्लेनिश होবৰ কাৰণে बोले सपोज 1 বছৰ লাগে ঠিক আছে सपोज 1 বছৰ লাগে বাট আমি কি কৰিছো একেবাৰে 5 বছৰ মান আমি এক্সট্ৰাকে কৰি লৈছো 5 বছৰৰ কাৰণে যাতে 5 বছৰ ৰিপ্লেনিশ কৰিবই লাগিব যিমান আমি লৈছো ফৰ এক্সাম্পল মই এনে কৈছো হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল এটা সো দ্যাট মিন্স দ্য ৰেট ঠিক আছে ৰেট অফ एक्सट्रैक्शन इज क्वाइट मोर ठीक है ये बहुत ज्यादा है देन इट कैन बी रिप्लेनिश तो ये याद रखिए सॉल्यूशन क्या है ये क्या आ गया यहाँ पे ये हाँ एक गलती हो गया मैंने यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करके आप सभी को मैं वहाँ पे आपका जो लिंक है आज मैं एक काम करूंगा गूगल ड्राइव में मैं इसको अपलोड कर दूंगा ठीक है तो ये इस यहाँ तक ही था ज़्यादा नहीं था एक पेज का ही था लेकिन जो पहले वाला पेज था वो यहाँ पे भी फिर से आ गया तो माइंड मत कीजिए ठीक है
तो ये है, मैंने क्यों इसको लिया था अटल भूजल योजना को। देखिए ये इंप्लीमेंट किया गया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 6000 करोड़ का आउटले है, जल शक्ति इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। स्टेटमेंट वाइज अगर देखेंगे तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हो जाता है, या फिर 50-50 बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्विंग फंड कर रहा है, लेकिन कहां पे कर रहा है ये भी मैंने बोल दिया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 वाटर स्टेज, ठीक है, लाइक वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज ऑफ 6 लाइक प्री आइडेंटिफाइड स्टेट्स। लेकिन ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है इसके लिए भी मैंने रीजंस यहाँ पे दिया है, साथ साथ में इंडिया से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो इट इज ऑल अबाउट द टॉपिक ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। और कई सारे अगर मान लीजिए कि बाद में भी अगर इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल वगैरह आए तो उसको भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो है आपका न्यूज आया था कि इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन मूव मे वर्सन पोल्यूशन। क्या कर सकता है इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन मूव है, इट मे वर्सन पोल्यूशन इफ स्टेप्स आर नॉट इन प्लेस, सेज स्टडी, ठीक है। इफ इन ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉज पावर फ्रॉम the grid, it will increase carbon emission, says a study by environment think tank. It will also divert from lagging efforts to build renewable energy capacity. तो इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन मूव क्या है देख लेते हैं। Why in the news? According to recent study by environment and energy think tank, क्लाइमेट रिस्क हॉराइजन CRH क्या है, एक थिंक टैंक है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडी अलग अलग स्टडी कराते हैं, CRH, ठीक है, CR7 नहीं, CRH, क्लाइमेट रिस्क हॉराइजन, ठीक है। It is like India's green hydrogen move may worsen pollution if steps are not in place to curb फॉसिल फ्यूल एमिशन इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अगर मान लीजिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में फॉसिल फ्यूल को अगर हम लोग कार्ब नहीं करेंगे, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का यूज करेंगे तो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का जो एम है वही बेकार हो जाएगा, उससे पोल्यूशन और ज्यादा होगा, यही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का भी अलग अलग तरीका है। ऑल्दो हाइड्रोजन हमारे लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको अगर मान लीजिए कि फॉसिल फ्यूल यूज करके अगर हम लोग हाइड्रोजन बनाएंगे तो उसका फायदा ही क्या है, यही यहाँ पे बोला गया है। जो क्लाइमेट रिस्क हॉराइजन है उनके द्वारा किया गया स्टडी में यही बोला गया है। डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, MNRE दैट मींस मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज डिफाइंड ग्रीन हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन प्रोडक्शन दैट एमिट्स नो मोर देन 2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर केजी ऑफ हाइड्रोजन। पर किलो हाइड्रोजन में 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं हो रहा है तो उस हाइड्रोजन प्रोडक्शन को या फिर उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बोल सकते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये भी इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, ये इसको लेके भी कई सारे डिबेट्स डिस्कशन अभी चलना बाकी है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस है, देखिए कैसे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन। यहां से क्या इंसर्ट किया जा रहा है, यहां से क्या लिया जा रहा है, नेचुरल गैस, ठीक है। तो नेचुरल गैस डेफिनेटली क्या है भाई, नेचुरल गैस तो खत्म हो गया ना, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। इसको अगर यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे फिर क्या होगा, यहाँ से जो प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा, हाइड्रोजन तो बन जाएगा लेकिन क्या हो रहा है, नेचुरल गैस से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसीलिए बोला गया है ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब 2020 तक ये चल रहा था, 2030 तक अभी क्या टारगेट है, ब्लू हाइड्रोजन एंड उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन में क्या है, नेचुरल गैस ही यूज होगा लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसको अंडरग्राउंड ही स्टोर किया जाएगा, ठीक है। ये भी अल्टीमेटली जाके क्या होगा, क्लाइमेट पे असर करेगा, एनवायरनमेंट में असर करेगा। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जब हम लोग ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ, मतलब फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ग्रीन सोर्सेज, मान लीजिए कि सोलर वगैरह से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसके साथ अगर हम लोग वाटर को रखेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइजर के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ हाइड्रोजन निकालेंगे, दूसरी तरफ ऑक्सीजन हम लोग निकाल पाएंगे। उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट में भी कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में भी कोई असर नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा, साथ साथ में जो हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी हाइड्रोजन से पूरा हो पाएगा। सो हाइड्रोजन व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। अगर सही शब्दों में बोला जाए, उसी तरीके का हाइड्रोजन जिसको
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, दैट मींस यहाँ पे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रहा है, ठीक है। इट इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, यही इसको ही हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का जो प्रोसेस है यहाँ पे क्या किया जाएगा, पहले इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने बोला ना कैसे किया जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से इसको सेपरेट किया जाता है। दैट में भी, और इसको कहां से पावर मिल रहा है, दैट में बी पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो यहाँ पे सीधी तरीके से लिखा है। ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हैज नो कार्बन फुटप्रिंट। क्या यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, नहीं हो रहा, इसीलिए इट हैज नो कार्बन फुटप्रिंट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दैट इज in use these days are primary source, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है ग्रीन हाइड्रोजन का, देखिए, टू अचीव एमिशन टारगेट, हर एक कंट्री का एक एमिशन टारगेट है, ठीक है, मैंने बोला भी था, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट डील जब मैंने पढ़ा था वहां पे मैंने बोला भी था। देखिए, सब कंट्रीज को क्या मिला था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स मिला था, एनडीसी। दैट मींस हर एक कंट्री नेशनली डिटरमाइन करेगा, मतलब उस आपका जो क्लाइमेट के लिए वो लोग क्या करेगा, ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगा, कितना कम करेगा, उसके लिए एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन और कमिटमेंट टारगेट रखा था, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी इज वाइटल फॉर India to meet its nationally determined contribution targets and ensure regional and national energy security, access and availability. Under the Paris Climate Agreement, India pledged to reduce the emission intensity India কিমান কমাম বুলি কৈছিলে of its economy by 33 to 35% from 2005 levels by 2030, ठीक है। तो इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इस जीडीपी 2030 तक हम लोग कितना कम करेंगे, 33 to 35% कम करेंगे। एंड ग्रीन हाइड्रोजन कैन ड्राइव इंडियाज ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी एंड टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दूसरा जो है एनर्जी स्टोरेज एंड मोबिलिटी। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये एक्ट एज एन एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन व्हिच वुड बी एसेंशियल टू मीट इंटरमिटेंसीज और ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द फ्यूचर। तो इसको अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी को स्टोर करेंगे, एनर्जी स्टोरेज में अगर ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग स्टोर करेंगे तो फ्यूचर में जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसको भी हम लोग पूरा कर पाएंगे। साथ साथ में ये एनर्जी स्टोरेज एंड मोबिलिटी का पॉइंट क्यों आ रहा है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी लॉन्ग डिस्टेंस मोबिलाइजेशंस फॉर ईदर अर्बन फ्रेट मूवमेंट या फिर मान लीजिए कोई सिटी ट्रेवल के लिए कैब हो या फिर कोई भी लाइक रोड ट्रांसपोर्ट, एयरवेज, रेलवे, सभी में हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबिलिटी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा जो है रिडक्शन इंपोर्ट डिपेंडेंस। देखिए, अभी क्या है कि इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो फॉसिल फ्यूल में बहुत ज्यादा है इंडिया का, मतलब हम लोग द लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कैन क्रिएट ए न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजीज मार्केट इन इंडिया वर्थ रुपीज ऑफ $18 to 20 बिलियन। पहली बात तो ये है, पहला इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये 18 to 20 बिलियन मार्केट इट विल क्रिएट। दूसरा जो है, अभी जो ऑयल हम लोग ईरान से, सऊदी अरेबिया से, लाइक कतार से, रसिया, यूएस से ला रहे हैं, बिकॉज ये हमारे लिए प्राइमरी फ्यूल है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। तो क्या होगा, जब ग्रीन हाइड्रोजन हम ही प्रोड्यूस करेंगे, ग्रीन टेक्नोलॉजीज का एक मार्केट हम बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमको अलग कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट बन के नहीं रहना होगा। और जो पैसा जो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जो पैसा अभी बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा, तो ये फॉरेक्स रिजर्व भी हमारे पास ही होगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग तब एनर्जी को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, जो ग्रीन एनर्जी के फील्ड में ग्रीन हाइड्रोजन करा सकता है। सो व्हाट इज द प्रेजेंट इशू इन ग्रीन हाइड्रोजन, अभी ऐसा, और साथ साथ में और एक पॉइंट है, इससे और क्या होगा, एक मार्केट डेवलप होगा तो एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। अभी व्हाट इज द प्रेजेंट इशू इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, क्या है देखिए। ओके, पहला जो है कंटिन्यूअस ऑपरेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स, ठीक है। इफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एसेंशियल व्हिच इज एसेंशियल फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन रन 24/7 दे वुड नीड टू ऑपरेट एट नाइट व्हेन देयर इज नो सोलर पावर अवेलेबल।
बात ऐसा है, अगर 24 घंटा, ठीक है, 365 डेज ही चलाना है, दिन में तो सोलर पावर, क्योंकि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो ये याद रखिए, ठीक है। तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है तो उससे चल जाएगा, लेकिन रात को क्या होगा, कैसे वो इलेक्ट्रोलाइजर चलेगा? सो कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर इट इज अ इशू, ठीक है, तो एक बड़ा इशू है। देन दूसरा जो है लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस। द रिपोर्ट नोट्स दैट द मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव नॉट डिस्क्लोज्ड देयर इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस एंड इट रिमेन्स अनक्लियर वेदर द फ्यू प्रोजेक्ट्स दैट हैव मेड कमिटमेंट्स आर मीटिंग 100% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस। सेकंड जो है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस में, मतलब जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उन लोगों का एनर्जी सोर्सेस क्या रिन्यूएबल सोर्स से आ रहा है ये भी नहीं मालूम है। सो देयर इज अ लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये भी एक इशू अभी के लिए है। तीसरा जो है द हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को प्रोड्यूस करने में ज्यादा पैसा जाता है, इनिशियल कॉस्ट भी जाता है, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो ये सब इशू हाल फिलहाल में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेके है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 5 असम पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज अबाउट डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, DNLA, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? 6 months आफ्टर साइनिंग ए पीस अकॉर्ड विद द गवर्नमेंट, 181 मेंबर्स, मतलब 6 महीना पहले पीस अकॉर्ड साइन हुआ था गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, असम गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। 181 मेंबर्स ऑफ डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA फॉर्मली लेड डाउन arms and joined the mainstream in the presence of Chief Minister Himanta Biswa Sharma here today. In September 2021, the DNLA had declared a unilateral ceasefire, अकेले किया था, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months फॉलोइंग एन अपील बाय द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने उस टाइम पे अपील किया था इलेक्शन के टाइम पे। द ceasefire हैज बीन एक्सटेंडेड सिंस देन, ठीक है, और फाइनली जाके फिलहाल में 181 मेंबर्स ने DNLA को छोड़ के फॉर्मली मेन स्ट्रीम को ज्वाइन किया है, आर्म्स एंड एम्युनिशन उन लोगों ने छोड़ दिया है, ठीक है, ये न्यूज था। लेकिन देख लेते हैं कि DNLA, व्हाट इज DNLA? DNLA जो है इट वाज एन इंसर्जेंट ग्रुप ऑपरेटिंग इन डिमा हसाओ एंड कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट्स इन असम। DNLA 2019 में बना था फॉर सीकिंग ए सोवरेन टेरिटरी फॉर डिमासा ट्राइबल्स एंड लॉन्च्ड एन आर्म इंसर्जेंसी टू अचीव इट्स गोल लाइक other insurgent groups of northeastern India. The group aims to develop a sense of brotherhood among the Dimasas and also to rebuild the trust and faith among the Dimasa society for regaining the Dimasa kingdom. मतलब to build trust among the Dimasas के बीच में वो trust develop करने के लिए and to regaining the Dimasa, the historic or the great Dimasa kingdom, उसको फिर से regain करने के लिए ही इन लोगों का वो उसको करने का जो सपना है, तो ये सपना मतलब दिखाना और लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना इन लोगों का मेन गोल था। द ग्रुप रन्स ऑन एक्सटॉर्शन एंड टैक्सेशन, ये लोग बेसिकली एक्सटॉर्शन एंड टैक्सेशन पे ही ये लोग ज्यादा काम कर रहे थे, वहां से इन लोगों को पैसा वैसा मिल जाता था। इट ड्रॉस इट सपोर्ट्स एंड सस्टेनेंस फ्रॉम NSC and IM आइजक म्यूबा ऑफ नागालैंड, ठीक है, इन लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा था? NSC and IM कर रहा था। नाउ डिमासा, देखिए पहली बात तो है कि इन लोगों का जो ऑपरेटिंग एरियाज था ये देख लीजिए, यहाँ पे डिमा हसाओ एंड कार्बी आंगलोंग में इन लोगों का ऑपरेटिंग एरियाज था। लेकिन डिमा हसाओ के बारे में अगर जानना है, जिसको देखिए बेसिकली ये जो आपका कौसारी है, ठीक है, कौसारीज का ही एक साथ ग्रुप है डिमासा। They are the earliest known rulers and settlers of Assam and now live in Dima Hasao, Karbi Anglong, Kachar, Hojai, Nagaon district of central and southern Assam as well as part of Nagaland, ठीक है। बेसिकली बोला जाता था ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि ब्रह्मपुत्र नदी क्रॉस करके जिन लोग साउदर्न वैली में यहाँ तक आया था, तो इन लोगों को बोला जाता था, मतलब जो भी कौसारी ट्राइब्स में से इन लोगों को डिमासा बोला गया, क्योंकि डिमासा का जो मतलब है इट इज मीन्स सन ऑफ ए बिग रिवर, ठीक है, मतलब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का बर्डाम नहीं होता तो ये लोग नहीं इसको तैर पाते, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो सन ऑफ ए बिग रिवर डिमासा, और ये लोग आके कहाँ बसे? सेंट्रल एंड साउदर्न असम पे ही ये लोग आके बसे थे, ठीक है। Okay, sometimes some of the historians describe them as aborigines
or the earliest known inhabitants of Brahmaputra Valley. Prior to Ahom rule, Dimasa kings believed to be the descendants of the rulers of the ancient Kamrupa kingdom who ruled large parts of Assam along with south bank of Brahmaputra between 13 to 16 centuries. आप सभी को मालूम होगा, हिस्ट्री क्लासेस में भी मैंने पढ़ा था आसाम हिस्ट्री के, कि आपका जो सुहुंगमुंग है, ठीक है, सुहुंगमुंग के टाइम पे ही ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइक आपका 1526 में ही इन लोगों के साथ क्या होता है, बैटल होता है। तो 26 से ऑलमोस्ट 36 तक ये बैटल चलता है, वार चलता है, बहुत ज़्यादा लंबी समय के लिए था, ठीक है, क्योंकि डिमासा सिर्फ यहाँ पे मतलब जो कौसारी किंगडम था, एग्जैक्टली कौसारी किंगडम यहाँ पे सिर्फ नहीं था, माईबोंग, खासपुर, डिमापुर एंड पार्ट्स ऑफ खोडिया में ये लोग थे। तो 10 साल लग गया था सुहुंगमुंग को पूरा जो ये कौसारी टेरिटरी है इसको एनेक्स करने के लिए, एंड फाइनली इन द ईयर 1536 AD इसको फाइनली एनेक्स किया गया था, ठीक है। देयर अर्लीस्ट हिस्टोरिकली नोन कैपिटल वाज दीमापुर, नाउ इन नागालैंड, एंड लेटर माईबोंग इन नॉर्थ काचार हिल्स। इट वाज a powerful kingdom and had almost all of the southern belt of Brahmaputra under its control in the 16th century. That means early part of 16th century होना चाहिए, ठीक है, ओके। देन प्रोटेक्शन, देखिए अभी आता है इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे जो प्रोटेक्शन, उन लोगों को क्या प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट एंड कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट बोथ एंजॉय द 6 शेड्यूल स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दोनों ही मतलब जो कार्बी है एंड जो डिमासा लोग हैं उन सभी को क्या मिला है, 6 शेड्यूल के स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे दिया गया है। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোক হয়, ঠিক আছে। দে রান বাই নর্থ কাছাৰ হিল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এন্ড কাৰ্বি আংলং অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রেসপেক্টিভলি। দুইখনতে কি আছে, ইয়াতে আপোনাৰ ডিমা হাছাও বা নর্থ কাছাৰ হিল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আছে যোনে ইয়াতে রান কৰে, ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে ইয়াতে রান কৰে, ঠিক আছে, ইয়াতে গভৰ্নেন্স চলায়, লোকেল গভৰ্নেন্স। দ্য অটোনমাস কাউন্সিল ইজ এ পাৱাৰফুল বডি এন্ড অলমোস্ট অল দ্য ডিপাৰ্টমেন্টস অফ গভৰ্নমেন্ট আর আন্ডার ইটস কন্ট্রোল এক্সেপ্ট দ্য পুলিশ এন্ড ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আৰু পুলিচক বাদ দি বাকী যিমানবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ, বেচিকেলি এইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত, এই দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কি হয়, ইনক্লুডিং BTR অঞ্চল যিটো আছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন, ঠিক আছে, তাতে কি হয় অলমোষ্ট তেওঁলোকৰ কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰতে সকলো কাম কৰা হয়, কিন্তু পুলিচ আৰু পাব্লিক অৰ্ডাৰ বা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ বাদ দি সকলো তাত হয় আর আন্ডার আসাম गवर्नमेंट, ठीक है। रिसेंटली मैंने बोला पीस अकॉर्ड इन लोगों के द्वारा साइन किया गया था, ठीक है, अभी तो फिलहाल इन लोगों ने छोड़ ही दिया, लेकिन उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में क्या था ये भी देख लेते हैं, ठीक है, कि a memorandum of understanding has been signed which makes the DNLA lay down its arms and abide by the Constitution of India. The group will disband their armed organization जो ऑलरेडी किया गया है, vacate all camps occupied by DNLA cadres and join the mainstream. A total of 179 DNLA cadres, that means exactly কিমান আছে ইয়াতে আমি যেটো পালো 181, ঠিক আছে, 181 জন will surrender their arms and ammunition जो ऑलरेडी किया गया है। इसके तहत ही ये वाला न्यूज़ मतलब जो इनिशिएटिव है ये न्यूज़ आया था, ठीक है, ये हुआ है, ठीक है। The central and state government will provide 500 crore each for the development of Dimasa tribal areas, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करीबन 500 करोड़ रुपए दिया जाएगा डिमासा ट्राइबल एरियाज को डेवलप करने के लिए। डिमासा वेलफेयर काउंसिल विल बी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट ए सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी to meet political, economic, educational aspirations and will ensure speedy and focused development of the Dimasa people residing outside the jurisdiction of North Kachar Hill Autonomous District Council, ঠিক আছে। তো এইটোই কোৱা গৈছে যিখিনি নৰ্থ কাছাৰ হিল অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ জুৰিছডিকশ্যনৰ আউটসাইডত যিখিনি পৰিছে ডিমাছা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কালচাৰেল SCL সোশিয়েল কালচাৰেল লিংগুইষ্টিক লিংগুইষ্টিক দিকটোৰ কাৰণে লিংগুইষ্টিক আইডেন্টিটি প্ৰিজাৰ্ভ, প্ৰটেক্ট আৰু প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি পলিটিকেল, ইকনমিক বা সোশিয়েল বা এডুকেশ্যনেল নিড আছে সেইখিনি এনচিয়ৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই অঞ্চলসমূহত স্পিডি আৰু ফোকাস ডেভেলপমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে আচলতে এই ডিমাছা ওয়েলফেয়াৰ কাউন্সিলখন কি কৰা যাব, বনোৱা যাব, ঠিক আছে। MOU also provides for the appointment of a commission under the paragraph 14 of 6th schedule to Indian Constitution to examine the demand for inclusion of additional villages
contiguous to NCHSC with the council North Kasar Hill Autonomous Council or বাহিৰত যিখিনি additional villages পৰে সেইখিনি under paragraph 14 of 6th schedule of Indian Constitution সেইখিনি inclusion কৰাৰো এটা provision এটা demand ইয়াতে MOE খনত আছিলে the 6th schedule under article 244 provides for the formation of autonomous administrative division autonomous district council that have some legal judicial and administrative autonomy within the state ঠিক আছে so 6th schedule 244 under কি আৰু provide কৰে for formation of autonomous administrative division ঠিক আছে Now ये जो है पूरा जो डिमा हसाव है यहाँ पे सिर्फ DNLA ही नहीं था कई सारे और आपका जो DNSC भी था कई सारे अलग अलग इंसर्जेंस ग्रुप्स अलग अलग टाइम पे थे तो मिलिटेंसी की अगर बारे में बात किया जाए एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात किया जाए द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम कार्बी आंगलोंग एंड डिमा हसाव हैव हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंसर्जेंसी by Karbi and Dimasa groups which peaked in the mid 1990s and was rooted in a core demand of statehood इन लोगों ने डिमांड स्टेटहुड मांगा था डिमांड किया था एक टाइम पे in Dima Hasao the demand for statehood began in the 1960s along with other tribal sections of the undivided Assam while new states such as Meghalaya were carved out Karbi Anglong and North Kachar remained with Assam on a promise of more power by the government including implementation of article 244A which allows for autonomous state within Assam in certain tribal areas this was never implemented basically যেতিয়া অসম যেতিয়া কমপ্লিটলি নৰ্থ ইষ্টৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেট ভাগ হৈ গ'ল মেঘালয় আঁতৰাই যেতিয়া দিয়া গ'ল তেতিয়া কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওক অসমৰ লগত ৰাখি এটো প্ৰমিস কৰা গৈছিলে ষ্টেট আণ্ডাৰ এ ষ্টেট যেটো কনষ্টিটিউচনৰ প্ৰভিজন আছে আৰ্টিকল 244 সাব ক্লজ এ আণ্ডাৰত হেতু দিয়া যাব বুলি কৈছিলে বাট হেতু দিয়া হোৱা নগল যেটো ইয়াত মই কৈছিলো আৰ্টিকল 244 ঠিক আছে আৰ্টিকল 244 8 কি আছে ষ্টেট within the state jak autonomous state boli koa hoise thik ase so tenekoi Dimasa National Security Force or janmo hoisile so a demand for a full fledged state Dima Raji gathered steam and led to the formation of the militant Dimasa National Security Force DNSF in 1991 the group surrendered in 1995 but its commander-in-chief Joel Garluza broke away and formed the Dima Halam Dauga DHD Joel Garluza কথা হয়তো শুনিছে তেও কি ফর্ম কৰিলে পাছত গৈ 1995 ত যদিও DNSC ভাঙি গল তেতিয়া তেও DHD বুলি Dima Halam Dauga বুলি এটা অর্গানাইজেশন ফর্ম কৰিলে in 2003 the DHD began negotiations with the government but its commander-in-chief broke and formed the DHDJ that means Joel ako ki hoy gol ako DHD par DHDJ Joel jitu group ase he group to form with an armed group called Black Widow ঠিক আছে with an armed group called Black Widow these groups were violent and had popular support they signed a ceasefire in 2012 Torun Gogoi sorkarar samoyte tetia bohukhini enokwa step luwa goisile now rapid fire current affairs declared for prelims from prelims point of view it is about earthquake swarm jo earthquake swarm hai ye basically Iceland mein southwestern Iceland mein जो Reykjanes Peninsula है वहां पे देखने को मिला है ये earthquake swarm क्या है it is a series of many low magnitude earthquake मतलब होरो होर बेसी न হয় 3-4 বা 4.5 or earthquake series of earthquake যেটা একেলগে আহে হেতুক আমি কি বুলি কও earthquake swarm বুলি কও causes কি হয় it occurs when the piled up seismic energy inside the earth is released in small amounts from certain point যেতিয়া earth surface তলৰ পৰা যিকোনো এটা piled up seismic energy eta ki hoy release hoy thik ase smaller amount of release hoy kisuman point or but tetia ei like earthquake swarmor jitu concept ba swarmor jitu phenomena hetu dekha poa jay thik ase active volcanism tremor occurs when magma field cracks push their way through the earth crust slow slip event it is essentially an earthquake in slow motion मतलब earthquake ही है लेकिन ये slow motion में होता है ठीक है It involves centimeters to tens of centimeters of movement along a fall over weeks to years. During duration, it may range from days, weeks to even months. Occurrence, it occurs in a localized region with a clear sequence of foreshocks. ठीक है सर, main quakes and aftershocks. तो basically ये है देखिए main shock ये foreshocks ठीक है and aftershock पूरा आएगा ठीक है
तो ये जो होता है आपका अर्थक्वेक, बेसिकली अर्थक्वेक शॉर्ट में कैसा होगा, मल्टीपल लो स्केल क्या आएगा, लो इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इसमें दिखाई देता है, बस इतना जान लीजिए। सेकंड जो है इंडियन मोबाइल कांग्रेस के ऊपर है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, 7 एडिशन ऑफ द थर्ड डे India Mobile Congress 3 day India Mobile Congress 2023 was inaugurated at Bharat Mandapam in New Delhi। ঠিক আছে, 7 এডিশন তিনিদিনীয়া ইণ্ডিয়ান মোবাইল কংগ্ৰেছ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। ইণ্ডিয়ান মোবাইল কংগ্ৰেছ অৰ ইণ্ডিয়া মোবাইল কংগ্ৰেছ IMC ইট ইজ এ ফোৰাম অফ টেলিকম মিডিয়া এণ্ড টেকনলজি। এইটো কি হয়, IMC টেলিকম মিডিয়া আৰু টেলিকম টেকনলজি এণ্ড মিডিয়াৰ এটা ফোৰাম হয়, ঠিক আছে, TTM ফোৰাম এটা হয়, ओके, TTM फोरम है। It highlights India's incredible advancements in telecommunication and technologies, is display startups, innovative products and solutions to discuss issues pertaining to the semiconductor industry, green technology and cyber security। ইয়াৰ লগে লগে এইবিলাকৰ ওপৰত ফোকাস কৰা গৈছিল, আলোচনা কৰা গৈছিল। India Mobile Congress 2023 is the largest telecom media technology forum held in Asia। थीम क्या था ये याद रखिए, ठीक है। 7 एडिशन ऑफ IMC कंडक्ट हो गया, कहाँ पे, भारत मंडपम में हुआ है। थीम क्या है, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ठीक है सर, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ठीक है सर, GDI ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इज द थीम ऑफ 7th एडिशन ऑफ IMC इंडिया मोबाइल कांग्रेस। एम क्या है, टू स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज ए डेवलपर, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। Participants, over 1 lakh participants from 22 countries including CEOs, exhibitors, startups and other stakeholders. Even during the program, 100 5G use CAS labs was awarded to educational institutions across the country and Aspire programs was introduced। Aspire program will foster connection between startups, investors and established businesses to catalyze fresh entrepreneurial initiative and collaboration। तो बेसिकली यहाँ पे 22 कंट्रीज ने यहाँ पे ज्वाइन किया था इंक्लूडिंग अदर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। ओवर 1 लाख पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आया था। बेसिकली एम क्या था, टू स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन, इंडिया पोजीशन टू स्ट्रेंथन करा एज ए मैन्युफैक्चरर और डेवलपर एंड एक्सपोर्टर इन की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इंडिया का जो आपका 100 5G यूज केस लैब्स है और यूज केस लैब इनिशिएटिव है, ये क्या है, दिस इज प्रोपेल द कंट्रीज इनटू द फोरफ्रंट ऑफ यूजेस ऑफ 5G टेक्नोलॉजी बाय एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ 5G एप्लीकेशंस। इट विल फोस्टर इनोवेशन अक्रॉस वेरियस सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग 6G रेडी एकेडमिक एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री, ठीक है सर। इट पुशेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी व्हिच इज क्रिटिकल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये किसके लिए भी काम करेगा, एक तो है आपका 6G रेडी एकेडमिक एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाएगा इस ये 100 5G लैब्स इनिशिएटिव के द्वारा। दूसरा जो है आपका इंडिजिनस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी बनाएगा व्हिच विल बी यूज्ड इन फॉर नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्रिटिकल इसके लिए होगा, मतलब इट विल बी हेल्पफुल और क्रिटिकल फॉर नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरा पॉइंट जो है रैपिड फायर करंट अफेयर्स में, इट इज अबाउट कुर्मी कम्युनिटी। एंड जो ये कुर्मीज है बेसिकली दे आर अदर बैकवर्ड, दे रिकॉर्डेड एज अदर बैकवर्ड क्लासेस, डिमांड्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस एंड वांट देयर कुरमाली लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुर्मी बेसिकली हिंदू एग्रीकल्चरल जाति है या फिर एक कम्युनिटी है, स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड नेपाल, यूपी एंड बिहार और नेपाल में ये लोग रहते हैं। दे आर फाउंड थ्रू आउट इंडिया, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन पूरा इंडिया में मिलता है। लैंग्वेज कौन सा है इन लोगों का, कुरमाली यूज करते हैं, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, मराठी, कोंकणी, ओडिया, तेलुगु आपका एंड अदर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। कुरमाली लैंग्वेज जो है ये लोग का डिमांड है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में ये इंसर्ट हो जाए एंड ओबीसी से उन लोगों को क्या अभी स्टेटस चाहिए, ST स्टेटस वो लोग डिमांड कर रहा है, ठीक है। कुर्मीज पुश फॉर ST स्टेटस, आदिवासी वीमेन मिसट्रीटेड, ट्राइबल सिचुएशन सीमर्स इन बंगाल, ये न्यूज था, ठीक है। इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट कॉल कुर्मी कुदाली, ये इंपॉर्टेंट है। कुर्मी कम्युनिटी का उनका ओन स्क्रिप्ट है लिखने का, जिसको बोला जाता है कुर्मी कुडाली, ठीक है, विच इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ देवनागरी स्कीम। ये जो हम लोग देवनागरी जो लिखते हैं, हिंदी जो देवनागरी में लिखा जाता है उसी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ये लोग का बिलीव दे आर बेसिकली हिंदूज, तो like but fews are Buddhist and Jain. Sari and Sarana are their religious practice involves of worshipping nature without idols, ये important है,
दे वर्शिप नेचर विदाउट आइडल्स इन ए सेक्रेट प्लेस कॉल्ड गुराम। গুৰাম হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ সেক্ৰেট প্লেচ বা থান বুলিও আমিও কওঁ থান বুলি, ঠিক আছে। তো গুৰাম বা থান তেওঁলোকৰ সেক্ৰেট প্লেচ হয়। ঠিক আছে, আৰু তেওঁলোক বেসিক্যালি তেওঁলোকৰ শাৰী আৰু শৰণা তেওঁলোকৰ ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিছ হয়। তো এইখিনি বস্তু কুৰ্মী কমিউনিটিৰ অলপ মনত ৰাখি থ'লে ভাল। শাৰী শৰণা गुराम, ठीक है। स्क्रिप्ट खन हो गल कुर्मी कुडाली, देन बाकी जो है बाकी तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए। एंड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुरमाली लैंग्वेज जो है इट कम्स अंडर इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली एंड प्राइमरीली बिलोंग्स टू द बिहारी लैंग्वेज फैमिली बाय शेयरिंग सम सिमिलरिटीज विद मैथिली एंड मगधी, ठीक है। तो बिहारी लैंग्वेज कम्युनिटी से भी फैमिली से भी ये बिलोंग करता है, बेसिकली इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से ब्रदर सेंस पे अगर देखा जाए, और मैथिली और मगधी के साथ इसका ज़्यादा लाइक सिमिलरिटी देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कुर्मीज वर नॉट इंक्लूडेड एज एसटी 1931 सेंसस, तो इसीलिए फिर से लाइक 1950 में भी इनको एक्सक्लूड किया गया था, ठीक है। तो 2004 में झारखंड गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया एसटी स्टेटस के लिए। हाउएवर ट्राइबल रिसर्च इनिशिएटिव ट्राई held that they are a subcaste of Kunvis and not tribals. Based on TRI report, the center rejected their demand. झारखंड सरकार ने किया था 2004 में, ठीक है। अभी एक बात इंपॉर्टेंट है, क्या प्रोसेस है किसी भी एक ट्राइब को, किसी भी एक कम्युनिटी को एसटी में इंक्लूड करने का, इंसर्ट करने का, ठीक है। दिस प्रोसेस फॉलोज ए सेट ऑफ मॉडलिटीज एस्टैब्लिश्ड इन 1999, ठीक है। Okay, so the respective state or union territories shall send the initial proposal for ST status. पहले कहाँ से जाएगा, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के तरफ से जाएगा, जो जिस पर्टिकुलर स्टेट यूनियन टेरिटरी में वो पर्टिकुलर कम्युनिटी है। इट इज फॉरवर्डेड टू द यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड सब्सिक्वेंटली सेंट टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर ऑफ जनरल ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। जो ORGI है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, वहां पे जाएगा बाद में। पहले कहाँ पे जाएगा, यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जाएगा, देन सब्सिक्वेंटली ORGI में जाएगा। इफ द ORGI अप्रूव्स द इंक्लूजन, द प्रपोजल इज देन सेंट टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर कहाँ जाएगा, NCST में जाएगा, ORGI अगर अप्रूव कर देगा। इफ द NCST कॉन्कर, द प्रपोजल इज फॉरवर्डेड टू द कैबिनेट फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950। एंड फाइनली जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसको एक्सेप्ट करेगा, ये प्रपोजल कहाँ पे भेजेगा, फॉरवर्ड करेगा, कैबिनेट तक जाएगा, और वहां पे क्या होगा, किसके लिए जाएगा, फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर ऑफ 1950। तो ऐसे ही एक लाइक कम्युनिटी को एसटी का दर्जा मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शेल्फ जो है ये मेल्ट हो रहा है, ठीक है। आज बहुत सारे करंट अफेयर्स एक साथ में हम लोगों ने ले लिया क्योंकि बहुत दिन से नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। तो किसके लिए हो रहा है, बेसिकली जो आइस मेल्टिंग है इस एरिया में, बेसिकली जो एमानसन सी है यहाँ पे हो रहा है, बिकॉज ऑफ पहला तो है आपका जो है वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शेल्फ, इट इज एंटार्क्टिका's लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू सी लेवल राइज। क्यों ये आइस शेल्फ, मतलब आइस शेल्फ মানে গম পাইছা ন, এটো কি হয় আইস শিটটো, এই ডাঙৰ যেটো আইস এরিয়া আছে এটো কি হয় বেসিক্যালি খণ্ড খণ্ড হৈ যায়, ঠিক আছে। মেল্টিংৰ পাছত কি হৈ যায়, খণ্ড হৈ যায়, ঠিক আছে। আইস মেল্টিং ইট ইজ हाईली अनलाइकली टू अवॉइड दिस एक्सेलरेटेड आइस मेल्टिंग मेकिंग द एंटार्क्टिक रीजन टू कंट्रीब्यूट इवन मोर टू सी लेवल राइज। अब मान लीजिए इतना सा भी हो गया ना, इतना सा भी हो गया तो वहां से क्या हो सकता है, सी लेवल राइज हो सकता है, व्हिच इज एनफ आइस टू इंक्रीज द ग्लोबल। ये मान लीजिए वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट पूरा अगर ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया, तो इट इज अलोन, इट कैन अलोन इंक्रीज द ग्लोबल मीन सी लेवल बाय एज मच एज 5 मीटर्स। पूरा दुनिया का जो सी लेवल है, मीन सी लेवल, ये 5 मीटर तक बढ़ा सकता है। 5 मीटर बहुत ज्यादा होता है कोई भी कोस्टल एरिया को डुबाने के लिए। द एंटार्क्टिक आइस शीट कंटेन्स एनफ आइस टू रेज ग्लोबल सी लेवल बाय अबाउट 58 मीटर 190 फीट इफ इट मेल्टेड एंटायरली। मतलब पूरा अगर, ठीक है, पूरा अगर ये एंटार्क्टिक आइस शीट जो है ये अगर किसी भी कारण से ये मेल्ट हो गया तो 58 मीटर्स तक क्या हो सकता है, मीन सी लेवल बढ़ सकता है,
ठीक है, causes of melting due to the warming of the southern ocean, mainly the Amazon Sea. এই Amazon Sea region to climate change ৰ কাৰণে কি হৈছে, warming হৈছে, সেই কাৰণে লাহে গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এটো west coast of Antarctica আছে, ঠিক আছে, will warm roughly 3 times faster than the historical rate through the rest of this century, which will lead to much more rapid melting of ice shelves. Impact क्या होगा, sea level rises of around 1 meter may threat hundreds of millions of people worldwide at risk of coastal flooding. In 2021, the UN climate body, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) का UN का जो IPCC है, ठीक है, climate body, it has projected a global average sea level rise between 0.28 meter to 1.01 meter by 2100. तो देख लीजिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन इट, ठीक है। गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड शुड बिगिन टू री इंजीनियर एंड और इवैक्यूएट हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज इन कोस्टल रीजन्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर एडीआरई एंड एसआई एग्जाम्स के लिए मैंने यहाँ पे डाला है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ पे हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, देखिए बेसिकली ये 3rd एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है, which opened a new door to tourism investment and people-to-people connectivity to Vietnam and other Southeast Asian countries from Northeast India, has received a gala welcome by the local people of Vietnam. On the 2nd day of the 3-day-long festival, a series of B2B, business-to-business meeting on tourism with around 70 tour operators of Vietnam trade investment meets with around 100 entrepreneurs of Vietnam, people-to-people exchange meets with VCs of Vietnam universities with northeastern region stakeholders are scheduled to be held. तो बेसिकली ये कहाँ पे हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है, 3rd एडिशन है, ये याद रखिए। असम एजुकेशन रिवॉल्यूशन क्या है देखते हैं। असम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बिल्ड एटलीस्ट 4000 स्टेट ऑफ द art schools across the state within the next 5 years, officially said on Monday. Chief Minister Himanta Biswa Sharma conducted a meeting with the officials of Education Department on Sunday to discuss the roadmap of the project. State Education Minister Ronoজ Pegu was also present in the meeting. So basically state art school বনাবা প্ৰায় 4000 খন next 5 years ত এটো এটা এডুকেশনাল ৰিভলিউশন হয়, কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰ্ট স্টেট অফ দ্য আৰ্ট স্কুলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে। 3rd is missing Olympic. The TMPK Tekam Missing Porin Kebam has taken an important step in promoting sports and providing a platform for the emerging talents with the organization of the Missing Olympics. সঁচাকৈ মিসিং যিটো TMPK অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, ঠিক আছে, সেই TMPK অৰ্গেনাইজেশ্যনত আজি মিসিং অলিম্পিক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এইটো সঁচাকৈ আচলতে শলাগ ল'বলগীয়া এটা ইনিচিয়েটিভ হয় to give or provide a platform for the emerging talents of from the missing community of Assam. The Missing Olympic is being held for 3 days, concluding on the 27th of October 2023. The event began on 25th October at Junai. कहाँ पे हो रहा है, ये important है, जुनाई में हो रहा है। At the district level, over 25,000 young athletes competed for a spot in the Missing Olympic and 3000 have successfully qualified to perform at the Missing Olympics held in Junai, ঠিক আছে। 25,000 और प्राয় 3000 এ ফাইনালি তেওঁলোকে পারফর্ম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। 4th is বেংমৰা সমন্বয় এৱাৰ্ড ইন আসাম। The All Assam Motok Yuva Chhatra Sonnmilan, All Assam Motok Yuva Chhatra Sonnmilone কি দিছে, prestigious বেংমৰা সমন্বয় এৱাৰ্ড। বেংমৰা was basically তিনচুকীয়া যোনটো অঞ্চল আছিল, বেংমৰা, ঠিক আছে। যদি তোমালোকৰ কাৰোবাৰ মনত আছে ক্লাছত মই কৰাইছো, বেংমৰা বেসিক্যালি কোনে পিছৰ ভাগলৈ ৰুল কৰিছিলে, যেতিয়া আহোমে ফাইনালি বেংমৰাত ৰুল কৰিবৰ কাৰণে কাক দায়িত্ব দি দিছিলে, কাৰ লগত যুদ্ধ নকৰি দায়িত্ব দিছিল বুলি কৈছিলে, হি ওয়াজ সৰ্বানন্দ সিংহ, দা গ্ৰেট সৰ্বানন্দ সিংহ, ঠিক আছে। সো বেংমৰা সমন্বয়ৰ 2023 কাক দিয়া গৈছে এবাৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিগৰাকী ডেপুটি CM আছে চৌনা মেইন, ঠিক আছে, এট দা 83rd Central Foundation Day event held on 28 October at Dirak Kakobothar in Tinsukia, ঠিক আছে। The award recognizes his outstanding contribution towards promoting brotherhood, cultural harmony and preserving indigenous heritage between Assam and Arunachal Pradesh. তো এবাৰ বেংমৰা সমন্বয় এৱাৰ্ড 2023 অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ চৌনা মেইনে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, ঠিক আছে। নেক্সট টপিক,
नीरज यादव क्लिन्स्ड ए गोल्ड मेडल इन द मेन्स जैवलिन थ्रो ठीक আছে জেভলিনত এবাৰ নীৰজ যাদৱৰ কথা আহিছে মনত ৰাখিবা আহিব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কনফিউজ কৰাবৰ কাৰণে কোৱেশ্চন দিব পাৰে নীৰজ চোপ্ৰা নীৰজ যাদৱৰ মাজত হি ক্লিন্সড এ গোল্ড মেডেল ইন মেন্স জেভলিন থ্ৰো F55 ইভেন্ট এট হাংজৌ's এছিয়া পেৰা অলিম্পিক গেম এছিয়া পেৰা গেমছ 2023 ঠিক আছে এছিয়া যেটো এছিয়ান গেমছ এছিয়ান পেৰা গেমছ আছে 2023 তাৰে F55 মেন্স জেভলিন থ্ৰোত তেওঁ গোল পাবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক আছে other winners কোন আছে টেকচান মাহালুবত he bagged a bronze medal in the men's javelin throw F55 at Hangzhou Asian Para Games 2023 Dilip bagged a gold medal in men's 400 meter T47 event at Hangzhou Asian Para Games in Para Games 2023 Pooja Bagheera paise bronze medal in women's 1500 meter T20 event at Hangzhou Asian Para Games 2023 to kol hoise same Hangzhou China te hoise next topic is Indian para athletes creates history with India's highest ever medal tally kiman ta pale 111 ta medal pabole সক্ষম হৈছে medal tally in the Para Asian Games 2023 with 111 medals including 29 gold medals 31 silver medals and 51 bronze medal India set its largest contingent this year consisting 303 athletes 181 male and 112 female out of the 111 medals female athletes have contributed 40 medals that means 36% of the total medal tally kone paise female paise and beat the Khelo India scheme at the grassroots level or the target Olympic podium scheme for elite athletes ठीक है तो ये आज के लिए क्वेश्चन है ये देख लीजिए एक मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ इंस्टाग्राम में कनेक्ट नहीं आप लोग हुए हैं तो आप लोग कनेक्ट हो जाइए क्योंकि यहाँ पे हर दिन अलग अलग करंट अफेयर्स अपलोड किया जाता है अलॉन्ग विद सर्टेन क्वेश्चंस तो जिसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जाम शास्त्रो